recording in progress. Okay, चलो नाउ ये तीन ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे, राइट? नाउ द स्टेमेन एंड कार्पेल आर एनक्लोज्ड इन इनरमोस्ट टू पेटल्स. ओके, स्टेमेन एंड कार्पेल मतलब ये इसके अंदर रहेंगे and they are going to form, they will form a structure known as the carina. मतलब carina is going to cover this stamen and the carpel completely, that is male and female part. ठीक है. Now emasculation ये particular flower में और ज्यादा easy क्यों था? Because if you see the structure of the stamen, so generally this stamen will have these two bunches. बराबर है, 9+1 arrangement था ये, correct? Now the carpel and stamen are known to mature simultaneously. दोनों साथ में ही mature होते हैं. That is why chances of self pollination are more in this particular flowers. और ये फ्लावर का this characteristic was important for getting the pure generation. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें से स्टेमेन्स को निकालना चालू कर दिया एक पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर से. So stamen will show the arrangement of the 9+1. So filaments 9 are fused and 1 is free. बराबर है. So the emasculation was very easy. So you just have to open the carina. Carina को open करो, remove this 9+ वाला bunch by the forceps and the emasculation is done. So while you are removing this particular structure, जब आप इसको यहाँ से ऐसे कट कर देते हो, तो make sure that the anther is not getting dusted on the polar, on the stigma of the same flower. वो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो उसी का डस्टिंग का करोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. लेकिन वो भी हम लोग नहीं करते, as I said, because it is done well before formation of the pollen grains. मतलब एंथेसिस से पहले हम लोग ये कर देते. So just open the carina, remove the 9+1 वाला bunch with the forceps and the emasculation is done. ठीक है. So this is how the emasculation is done, because the flower supported the kind of properties the flower has, it has supported this entire mechanism or the process. Step 3 में हम लोगों ने क्या, yes it's a manual mechanism, manual process इशिता. Okay, अच्छा step 3 में क्या किया, selfing of the F1 hybrids to raise the F2 generation. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि F1 में results were not as per the expectation, मतलब Mendel was expecting something else and the results were completely different. So naturally he has to self cross the F1 generation. So Mendel allowed these F1 generation का all the plants to self cross, मतलब उनके अंदर ही selfing होना चालू हो गया. So natural self pollination in each F1 hybrid was done. And when natural self-pollination was done in each hybrid, then they collected the seeds separately and then it was raised for second filial generation. ठीक है. तो natural self-pollination, natural cross-pollination, दोनों pollination से जो भी plants आए, तो उनको हम लोगों ने seeds collect किए. After collecting the seeds, then we started developing them as the second filial generation. And the results were slightly different. So the further F3 was obtained by selfing F2 hybrids. तो F2 hybrids को भी हम लोगों ने self cross किया और उससे हम लोगों को मिला F3 generation. लेकिन हम लोगों को सिलेबस में F3 generation सीखना नहीं है. So you don't have to worry about that. ठीक है. In this वॉइस ब्रेक, आई नो मैंने मेरा मोबाइल नेटवर्क चालू किया है, उसकी वजह से शायद मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है. जस्ट अ मिनट, मेरा वाईफाई कनेक्शन कुछ तो इशू आ गया था. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, लेट मी कीप द वीडियो ऑफ फॉर सम टाइम, अदरवाइज थोड़ा मेरा मोबाइल नेट पे चल रहा है अभी काम. So I'll just keep my video off for some time. Okay, so that will be easy. Anyway, तो हम लोगों ने क्या किया, natural self pollination, we allowed these plants to naturally self pollinate so that we got the second filial generation. और उस second filial generation का self crossing करके बना F3 generation. ठीक है. So this is how the third step was involved. Get in this?
Is it clear everyone? Yes. चलो इसको लिख लिया. ओके, एक मिनट. हाँ, ये क्या है, अटेंडेंस हो गया है और उसके बाद मीटिंग अपना बंद हो गया था. तो अभी ऐसा हो गया है कि अटेंडेंस में अभी बच्चे थोड़े से कम दिख रहे. तो अभी मैं वापस अटेंडेंस लेने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू सेंड इट टू योर सर. ओके, एक मिनट. ओके, चलो. मैंने क्या किया, जरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट्स लेकर भेज दिया क्योंकि नंबर कम है ना. तो ये ऐसा हो जाएगा, मीटिंग शुरू हो गया, अटेंडेंस पूरा था, मीटिंग बीच में बंद पड़ गया, सब लोग गए, अटेंडेंस फुल. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? हेलो, कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है. क्लियर है? चलो, थोड़ा अपना भी नेट देख लो. थोड़ा थोड़ा. ओके, चलो ये हो गया. स्टेप 3 is done. I guess everyone has written step 3 also. Now we will have to start one by one. So we'll start with the monohybrid cross and its ratio. Okay, तो monohybrid cross मतलब क्या? How many characters are taken into consideration? It is only one character. So the cross between two pure homozygous parents which differ in single pair of contrasting trait. मतलब at a time only one character is taken. जैसे for example height of the plant is a characteristic which we have taken. तो उसमें दो टाइप के वैरायटी के प्लांट हमने लिए, एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया, एंड बोथ आर बेसिकली होमोजाइगस फॉर देयर जीन्स. ओके, तो दोनों भी होमोजाइगस है, मतलब दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. एंड देन नेचुरली इनमें जब हम लोग पॉलिनेशन करते हैं, तो एज वी ऑल नो दैट द गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल डिवीजन नोन एज मियोसिस. और मियोसिस में होता क्या है? सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे बिकम हाफ, thus the number of genes will also become half, so that one gene will be present in one particular gamete. so यहाँ पे gamete का भी separation हो गया. और ये these are maximum possible results. जैसे all these gametes can combine like these to give rise to a hybrid generation, that is capital T small t. So this is known as the F1 generation. So this is your first filial generation, and all these first filial generation plants are tall, but they are not homozygous, they are hybrids और heterozygous. ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने इस तरीके से शुरुआत किया. सो पहला स्टेप, मेंडल सिलेक्टेड प्योर टॉल प्लांट which was considered as the female flower plant, and the second was the pure dwarf which is a male plant. Okay, so pure dwarf is a male plant, pure tall is a female plant, and then he started crossing them. How did he confirm purity of these particular plants? By selfing them for 3 generations.
मतलब ये वाले प्लांट को 3 बार सेल्फ किया, 3 जनरेशन में सेल्फिंग किया, इस प्लांट का 3 जनरेशन में सेल्फिंग किया, और उसके बाद फिर इमैस्कुलेशन किया टू डेवलप अ फीमेल प्लांट एंड देन मेल प्लांट। गेट इन दिस? ठीक है। स्टेप टू में क्या किया? मेंडल देन परफॉर्म द आर्टिफिशियल क्रॉसेस। नाउ व्हाइल द आर्टिफिशियल क्रॉसेस वर डन, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट। हम लोग जब कभी भी कोई काम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट समथिंग ना आउट ऑफ इट। सो ही वाज एक्सपेक्टिंग अ टाइप ऑफ रिजल्ट जिसमें उसको लगा था कि कोई ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। मतलब एक टॉल प्लांट है, उसको क्रॉस किया हम लोगों ने ड्वार्फ प्लांट के साथ। सो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद जो नया जनरेशन आएगा, neither it's going to be tall nor it's going to be dwarf but intermediate. Okay, so he was expecting that it could be an intermediate plant, or this particular plant can be like, you know, नया plant जो आएगा उसमें से 50% tall रहेगा और 50% dwarf रहेगा। करेक्ट? ये उन्होंने सोचा था, मेंडल ने सोचा, लेकिन इसमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आया। Instead, what he observed that all the plants of the F1 generation were tall. सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे F1 जनरेशन के? All the plants were tall in nature. And then he was little confused. क्यों? Because he has taken one plant which is dwarf, he has taken another plant which is tall, but to his surprise he observed that all the pea plants in the F1 generation were tall. ठीक है? So artificial cross करने के बाद सारे के सारे plants कैसे आए? Tall. So the question was where the dwarfness has gone? Dwarf plant गया किधर? And how it got eliminated? If at all, if it is eliminated, then what is that which is made that particular plant get eliminated? And is it eliminated forever? यानी हमेशा के लिए चला गया क्या? Correct? Or are tall offsprings similar to the parents? ये भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स आए वो P1 जनरेशन के टॉल प्लांट जैसा ही था, तो वो सच में सिमिलर, आइडेंटिकल है कि सिमिलर है कि क्या है? So that we need to find out. So these are the questions with which the Mendel was struggling. Correct? कि dwarfness गया किधर, वो eliminate कैसे हो गया? Is it that it is now eliminated forever? हमेशा के लिए eliminate हो गया? And जो tall offsprings है, are they similar to the parents? Parental tall plant. ठीक है? Now what he did to find out the answer for all this, he proceeded further for the selfing of the F1 generation. So Mendel allowed natural selfing of the F1 generation. Now, while natural selfing of the F1 generation was done, he observed that the dwarfness reappeared in some plants in F2 generation. May not be in all, but in some plants the dwarfness definitely reappeared. Correct? So naturally, फिर इसमें से जो ratio आया, so Mendel had collected almost 1064 seeds of F2 generation, of which इसमें से tall were 787 and dwarf were 277. ठीक है? मतलब F1 जनरेशन का सेल्फिंग हो गया, समझ में आ रहा है? F1 जनरेशन का सेल्फिंग हो गया। सेल्फिंग होने के बाद जब इनका नया प्लांट आया, उसके सीड्स लिए गए, फिर ये सीड्स को इन्होंने सो किया सॉइल में सो करने के बाद जो नया रिजल्ट आया, तो ये ऐसा रिजल्ट आया। सो कितने सीड्स उसने कलेक्ट किए थे? 1064। जब ये सीड्स का जब प्लांट बनना चालू हो गया, ये सीड्स का जब प्लांट्स बना, तो उसमें से ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ 1064, 787 वर टॉल and 277 were dwarf. So if we find out the ratio of this particular plant becomes almost like 3:1. समझ में आ रहा है? So it was almost like a 3:1. So he thought it was due to a female dominance. क्योंकि फीमेल प्लांट कैसा था? टॉल था ना? If you remember, parent one में हमने female plant tall लिया था. So he thought that it could be because of female dominance, and the tallness is basically because of the ovule, and dwarfness can be because of the tiny pollens. ऐसा उनको लगा था, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, that is not possible. I hope everyone is getting this. समझ में आ रहा है ना? थोड़ा अलग तरीके से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स को, जैसा एक्चुअली मेंडल ने सोचा था वैसा हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आप लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था,
लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टडी अलोंग विद द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दस मेंडल परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस आल्सो। रेसिप्रोकल क्रॉसेस मतलब क्या? ऑपोजिट। तो उसने अभी क्या लिया? प्योर टॉल प्लांट लिया विच इज मेल। अभी टॉल प्लांट मेल कंसिडर किया एंड अ प्योर डॉर्फ प्लांट फीमेल था, and he found that the results were same and he still got the similar results. So same results आए। So all F1 generations were tall। उनके जो F2 generation आया उसमें कोई tall था, कोई dwarf था। ठीक है, some plants were tall and some plants were dwarf. That is how the ratio became 3:1. So how is this monohybrid ratio? So Mendel performed monohybrid cross and reciprocal cross with several pairs, with all these different pairs, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स लेके 7 पेयर्स बनाए और वो 7 पेयर्स के साथ उसने क्रॉसेस करना चालू किया एंड ही गॉट सेम रिजल्ट्स इन द ऑल्दो द कैरेक्टर्स वेरी डिफरेंट। रिजल्ट्स वही आए। P1 जनरेशन में सेम वैसा ही था रिजल्ट, ओनली वन ऑफ द ट्रेड गॉट एक्सप्रेस्ड। अरे बाप रे, सानिका वाले एक मिनट। हाँ, दिया सानिका, यस, डन। Sir, could you show the slide of reciprocal cross? I was yes yes yes, I'll show you, just a minute। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ, then I'll show you। Now what he did was he has taken different pairs of characters। तो 7 pairs लेकर उसने क्रॉसिंग करवाया सारे के सारे कैरेक्टर्स कंसीडर करके and then he found that the results were same। रिजल्ट्स वैसे ही थे। So all F1 जनरेशन were tall। इनका जब सेल्फिंग हुआ तो उसमें नेचुरली कुछ ऐसे थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आए in a very smaller number। So F1 trait expressed largely and contrasting traits expressed in a small number। So again tall and dwarf वाला ratio, अब color of the flower, then color of the seed, shape of the seed, ये सब consider किया उसने। Position of the flower consider किया, then color of the pod, shape of the pod, ये भी उसने consider किया। Considering all these characters, he tried to do crosses, both simple cross, monohybrid cross and reciprocal cross, ताकि कोई ऑप्शन मतलब कोई ऐसा मैटर ऑफ चांस ना रह जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। हाँ, अभी साने का कौन सा चाहिए था तुझे? हाँ सर, ये वाला। डन सर। आर यू ऑल राइटिंग दिस कि ऐसे ही बैठ के सुन रहे हो? ओके, गुड। विच स्लाइड्स यू वांट आदित्य बिफोर दिस? क्यों सब लोग ऐसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया, तुम लोग भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये वाला। चलो तो अभी देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड रेशियो में क्या क्या कैरेक्टर्स लेकर कैसे कैसे रिजल्ट्स आए और कितने प्लांट्स का क्रॉसिंग किया। यू नो मेंडल ने अपने पूरे लाइफ टाइम में ही डिड ऑलमोस्ट मोर देन 28,000 क्रॉसेस। 28,000 से ज्यादा क्रॉसेस उसने किए, तब जाके ये पूरा रेशियो समझ में आया। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्या क्या रिजल्ट्स आए? Now Mendel carried out crosses between all pure, that is homozygous parents with 7 contrasting characters independently। जैसे मैंने बताया, हाइट ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड, और उसके बाद देन पोजीशन ऑफ द फ्लावर और कलर ऑफ द फ्लावर। तो ये सब लेकर he has taken all the characters and then he started observing the results। तो जैसे पहला कैरेक्टर लिया उसने स्टेम हाइट। अभी इसमें homozygous tall plant is crossed with homozygous dwarf plant। So इनको मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल, बट दे वेर ऑल हाइब्रिड्स एंड नॉट दी होमोजाइगस। मतलब हेटेरोजाइगस थे, होमोजाइगस नहीं थे। और इसका जब F2 जनरेशन आया तो F2 जनरेशन में नंबर देखो कितना है? 787 were tall, 277 were dwarf। So the ratio is 2.84:1।
Now this entire part is going to be important. You are supposed to write each and everything, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ सारे characteristics का actual ratio which was observed by Mendel. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? तो आपको ये लिखना पड़ेगा सबको, हाँ, कि F2 जनरेशन में जो रेशियो आया उसमें कितने प्लांट्स कौन से थे, मतलब कलर ऑफ द फ्लावर में अगर पर्पल और व्हाइट था तो पर्पल कितने प्लांट्स आए, व्हाइट कितने आए, तो उनका रेशियो क्या था। संजीवनी कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा आपको? संजीवनी सेलेंजिनेला सो गई है, ये लिखा। हेलो, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. चल नेक्स्ट इज सीड कलर। ओके, सीड कलर में दो ऑब्जर्वेशंस थे, कौन से? येलो एंड ग्रीन। दोनों भी होमोजाइगस प्लांट्स P1 जनरेशन, क्रॉस किया तो मुझे मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स वेर येलो, बराबर है, बट येलो हेटेरोजाइगस, कैपिटल Y स्मॉल y। अभी इनका सेल्फिंग हुआ, तो सेल्फिंग होने के बाद जो नए प्लांट्स आए उसमें F2 जनरेशन आया। तो कितने F2 जनरेशन में कितने येलो प्लांट्स थे? 6022। और ग्रीन कितने थे? 2001। मतलब कितने प्लांट्स का क्रॉसिंग किया, देखो ये कैरेक्टर लेकर, ऑलमोस्ट 8023, यानी इतने सारे नए प्लांट्स ग्रो किए, रिजल्ट्स आए। 8023 plants were grown. So the ratio was 3.01:1, near about 3:1. अरे संजीवनी कौन सा चाहिए इसके पहले का? कौन सा चाहिए था संजीवनी? ये चलो, आई होप दिस इज डन। सीड कलर लिखा, दिस इज द रेशियो। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन वेर 8023, उसमें से 6022 वेर येलो एंड 2001 वेर ग्रीन। So ratio is 3.01:1. Next character, seed shape. Again homozygous round, homozygous wrinkled. इनका क्रॉसिंग किया तो मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो सीड्स थे वो कैसे थे? राउंड, लेकिन सारे के सारे कैसे थे? हेटेरोजाइगस। फिर इनका सेल्फिंग हुआ तो मिला मुझे F2 जनरेशन। कितने प्लांट्स है F2 जनरेशन में? राउंड प्लांट्स वर 5474 and wrinkled plants were 1850. Again the ratio is 2.96:1. I hope everyone is writing this. हो गया? चलो गुड, ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर, पॉड कलर। पॉड कलर में अगेन वापस ग्रीन एंड येलो, दोनों भी होमोजाइगस। प्योर प्लांट्स को क्रॉस किया तो मुझे मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्लांट्स है वो सारे कैसे थे? ग्रीन कलर पॉट्स, लेकिन सारे के सारे थे हेटेरोजाइगस, कैपिटल G स्मॉल g। फिर F1 जनरेशन का हुआ सेल्फिंग, सेल्फिंग होने के बाद आया F2 जनरेशन। कितने प्लांट्स आए? ग्रीन प्लांट्स वर 428, येलो प्लांट्स वर 152। अगेन द रेशियो इज ऑलमोस्ट 3:1, 2.82:1। Now we are actually talking about the ratio, हाँ, proper ratio की बात कर रहे हैं हम लोग, real time ratio, ठीक है? So this is pot color, seed shape, ये seed shape, Mr. आदित्य, हो गया? चलो नेक्स्ट इज पॉड शेप। पॉड शेप में वापस इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, दोनों भी होमोजाइगस, P1 जनरेशन, प्योर प्लांट्स। इनको क्रॉस किया तो बना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड्स इन्फ्लेटेड पॉड, ठीक है, कैपिटल I स्मॉल I। लेकिन फिर F1 जनरेशन का सेल्फिंग हुआ तो मिला F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट्स आया? 882 वेर इन्फ्लेटेड,
and 299 were constricted. The ratio is 2.95:1. ठीक हो गया? चलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल क्रॉस किया, F1 जनरेशन सारे के सारे एक्सियल कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इनका लास्ट, ये लो लास्ट सानिका घुड़के, डन सानिका। चलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल कैपिटल ए स्मॉल ए, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? 651 were axial and 207 were terminal. The ratio is 3.14:1. So that was the ratio. Done. Chalo, next, flower color of the flower. Okay, violet and white. F1 P1 जनरेशन का क्रॉस किया, मिला F1 जनरेशन सारे के सारे वॉयलेट कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, कलर्ड लिखा था ना हम लोगों ने कैरेक्टर, इसके लिए कैपिटल सी स्मॉल सी। F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स आए? वॉयलेट 705, व्हाइट प्लांट्स कितने आए? व्हाइट फ्लावर्स कितने आए? 224। रेशियो अगेन इज 3.15:1। और एक कैरेक्टर है ना 7A, हमने उसको कंसिडर किया है, दैट इज कौन सा कैरेक्टर है वो? सीड कोट। वेरी गुड निशिता, सीड कोट कलर सेम कलर्ड एंड व्हाइट। तो वापस जो क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे सीड्स कलर्ड थे कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर F2 जनरेशन में कितने आए? 705 colored and 224 white. So again the ratio is 3.15:1, almost same. आप इमेजिन करो कितने प्लांट्स को ग्रो किया, देखो इन्होंने, है ना, कितने सारे सीड्स कलेक्ट किए F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सीड्स कलेक्ट करने के बाद when they are sown in the soil, then this F2 जनरेशन का रिजल्ट्स आर फाउंड। बराबर है? So many plants were cultivated and developed by Mendel to find out the actual results of the experiment. ठीक है? Here in this, yes, पी प्लांट के साथ ही दिन भर बैठे रहते होंगे। Yes, true it is. जब तक ये मैडनेस नहीं आता है ना इशिता, तब तक आप कुछ अलग नहीं कर सकते। यू हैव टू बी मैड, स्टूपिड, इडियट, पागल टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, है ना? जिसके लिए हम लोग डरते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। ये ऐसे लोग नहीं होते, राइट? दे आर मैड, उनको दुनिया की परवाह नहीं होती, जो हो गया वो हो गया, मैं मेरा काम करूंगा, खत्म। ओके, चलो कंक्लूजन्स, क्या क्या कंक्लूजन्स आए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से? Okay, so what Mendel concluded that the characters such as stem height, seed color, etc. they are inherited separately. इन्होंने बोला कि ये सारे characters separately inherit होते हैं, मतलब हर एक character के लिए कुछ तो ऐसा है which is responsible for controlling that particular character and transmitting it to the next generation. Correct? And they were always inherited separately as a discrete unit, which was later on, he said that there are certain factors which are responsible for transmission of these traits. पहले उन्होंने उसको यूनिट्स नाम दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर्स, और आज वो फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? We call them as the genes. ठीक है? So these are all the units of heredity, and today these units of heredity are known as the genes. Okay, तो इतना सब याद रखो. So they are all determiners
or the units. These units were named, the labeled the name as factors. We know that these are all the hereditary units or units of heredity. Today we call them as the genes. Okay, सानिका घोड़के कौन सा अभी चाहिए? इतना पीछे क्यों हो यार आप? Characteristic 7 slide. ये हो गया घोड़के काकू? चलो कंक्लूजन समझ में आ रहा है सबको? ये मेंडल ने किस तरीके से ये कंक्लूड करना चालू किया? आर यू ऑल गेटिंग दिस? So he said that these characters are inherited separately, number one, and he said that because why they are separated, inherited separately, because there are certain units, discrete units, which are responsible for carrying them. Okay, जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया factors, or also called as the determiners. So those were termed as the units of heredity, and today we call them as the genes. Okay, so this is first conclusion which he had. And each factor existed in two contrasting forms. And that is why he said that there are some factors which are always present in pairs, and these factors are responsible for transmission of the traits or transmission of the characters. Jaise for example, factor for height had tallness and dwarfness. Okay, so now we know there can be two or more forms of genes. So we call them as what? Today we call them as the alleles. जो एलिलोमॉर्फ्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट टाइम. सो नाउ वी कॉल देम एज द एलिल्स. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिल. सो वी हैव एन एलिल फॉर टॉलनेस, वी हैव एन एलिल फॉर ड्वार्फनेस, दोनों मिलकर बन जाता है आपका जीन्स, जीन. ठीक है, सो दैट इज हाउ द पेयर था. Now one of the two is dominant and the other one is recessive. So he always said that one of them is going to be dominant and the other one will remain recessive. ये उन्होंने लॉ लाया. अच्छा, ये उन्होंने ऐसा क्यों लाया? क्यों? Because in garden pea plant he never experienced an intermediate product. मतलब इसके अलावा कितने भी क्रॉसेस किए, कोई भी कैरेक्टर कंसीडर किया, बट ही नेवर ऑब्जर्व्ड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. क्योंकि ये प्लांट का शायद वो खासियत है कि उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आते नहीं है. That is why he concluded that one of them is going to be dominant and the other one will remain recessive. And dominant should always be written with a capital letter. Recessive should always be written with a small letter. Okay? And only dominants are going to express in the F1 generation. Right? And then inheritance of each character is controlled by a pair of factors. Okay? So a pair of factors transmitted from both the parents. Okay? So from a female parent as well as a male parent, and thus the child will get both the parents, both the factors. करेक्ट? एक फैक्टर मदर से, एक फैक्टर फादर से, लेकिन उसमें से कोई एक एक्सप्रेस करेगा, कोई एक सप्रेस्ड रहेगा. So that is what Mendel concluded. So with the reappearance of the recessive trait in the F2 generation, then F1 hybrids factors do not mix with each other but remain together. That is what he has concluded. What he said, that F1 hybrid factors will not mix with each other, instead they will remain together. तो ये mix नहीं होता, साथ में ही रहता है, is what he concluded from the observation that there is reappearance of the recessive trait in the F2 generation. मतलब एक बार वो factors वो particular plant में वो seeds में चले गए, so they will always remain together, but will not mix. Mix नहीं होगा, मतलब blending of genes will not be there, blending of factors will not be there, is what Mendel said. लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला ना कि ब्लेंडिंग भी होता है, तो उसकी वजह. अच्छा, इसके ऊपर से कौन सा लॉ होता है? तो इसके ऊपर से ना दो इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं. कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को वापस डिफाइन किया गया बाय सेइंग कि रोज प्लांट में ऐसा हो सकता है दैट वी क्रॉस रेड कलर्ड फ्लावर विद अ व्हाइट कलर्ड फ्लावर एंड द न्यू फ्लावर विल बी पिंक. तो कॉन्सेप्ट आया कोडोमिनेंस का या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दूसरे साइंटिस्ट ने लाया, कोडोमिनेंस किसी और साइंटिस्ट ने लाया, टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव द क्लैरिफिकेशन टू व्हाट मेंडल डिड. ठीक है,
तो उसको बाद में नाम दिया गया नियो मेंडलिज्म. नियो मेंडलिज्म मतलब क्या? मेंडेलियन स्टडी इन अ न्यू फॉर्म, इन अ मॉडर्न वे. ठीक है. Next, during gamete formation, these factors will separate or segregate, and each gamete receives only one factor from each pair of factor. जैसे यहाँ पे हो रहा है, we have a pair of factors. Now, whenever the gametes are formed, the gametes are formed by a cell division known as meiosis, जिसमें number of chromosomes they become half. So Mendel said that the number of factors will also become half, so that any one of the factor would be expressed in a would be present in a given gamete. फिर उनका क्रॉसिंग होके नया जनरेशन आएगा. ठीक है. So that is what he said. So this is basically law of segregation. करेक्ट. पहला वाला जो था वो that was law of dominance. अभी ये वाला जो है this is known as the law of segregation. ये बाद में अपने को अच्छे से पढ़ना है. हाँ. So the organisms receiving recessive factors from both the parents expresses recessive traits. ये ऑर्गेनिजम्स है नीचे वाले. हाँ, एक मिनट है इशिता. यहाँ पे ये रिसेसिव फैक्टर है गैमेट में, इधर भी रिसेसिव फैक्टर है, तो ये वाला जो प्लांट है उसमें आ गया रिसेसिव गैमेट. मतलब ये क्या हो गया? रिसेसिव टाइप ऑफ अ प्लांट हो गया. ठीक है. सो दिस इज अ रिसेसिव प्लांट इज व्हाट वी हैव मेंडल कंक्लूडेड. ये वाला स्लाइड इशिता. आप लोग लिख रहे हैं क्या कि ऐसे बैठे भजन कीर्तन सुन रहे हैं? Am I going fast? Okay. Ishita, this is law of segregation. सानिका क्या हुआ? सानिका घोड़के, एनी प्रॉब्लम? फास्ट हो रहा थोड़ा? कहाँ अटकी तू बोल मुझे, मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ तुझे. ओके. सानिका वालिम्बे सिंह नॉर्मल. तो बोलो कहाँ अटके हो संजीवनी. अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना? These are all Mendel's conclusion. Even if I am going fast, but I hope you are getting the idea. कुछ लिखना है तो अब भी बोलो फटाफट. संजीवनी, सानिका, घोड़के काकू. Yes, this is law of segregation. Okay. Yes, पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ा कनेक्ट हो पा रहा है, राइट? ठीक है. So the organisms are going to receive factors from both the parents and expresses that as a recessive factor. ठीक है. So these are all the results of conclusions of the Mendelian monohybrid cross. Now, अभी जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स आए उसका एक एक्सप्लेनेशन है, राइट? तो वो एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो मेंडल स्टार्टेड विद प्योर लाइंस, करेक्ट? सो प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ ऐसे चालू किया उन्होंने. सो पेरेंटल टॉल, कैपिटल टी, पेरेंटल that the parents are true breeding. How he confirmed both the parents are true breeding? It is basically after crossing them for 3 generations. And once he confirmed that the parents are true breeding, these pure lines gametes were taken and these gametes were crossed, or rather the gametes were crossed naturally in these particular plants. Okay? So during gamete formation, the factors are going to separate. No, test cross नहीं है. ये explanation on the Mendelian theory. Test cross बाद में आएगा आदित्य, और back cross भी. Now during gamete formation, factors will separate. बराबर है. जैसे कैपिटल टी है तो अभी गैमेट फॉर्म हो रहे हैं. मतलब ये अगर आपका बेसिक जर्म सेल है तो उसमें से अगर गैमेट्स बनेगा तो गैमेट्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन नोन एज मियोसिस. तो उसमें क्या होगा, एक टी इधर आएगा, दूसरा टी दूसरे गैमेट में जाएगा. Same way it will happen for the small t. Again, one small t will enter in one gamete, another small t will enter in another gamete. So that is how the segregation of the factors will take place here.
So this pure parents produce only one type of gamete. क्योंकि ये प्योर है तो एक टाइप का ही गैमेट बनेगा. हाइब्रिड होते हैं तो दो अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं, लेकिन ये सारे कैसे हैं? प्योर. सो दे डेवलप्ड ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. ठीक है. now whenever they fuse, जब इनका फ्यूजन होता है तो that time the results are going to be F1 generation का hybrids. So suppose if this capital T combines with the small t, the result is capital T small t, or again this T combines with this small t, the result is capital T small t. Same you go for the next capital T small t, and same you go for the next again capital T and small t. मतलब F1 generation में जितने भी आए वो कैसे थे? Hybrids. And thus all F1 generation are hybrid with the gametes or the genetic combination or the factors being capital T and small t. But because there is presence of capital T, so that got expressed and the small t got suppressed or remained suppressed. ठीक है. So gamete formation पे ये factor separation हुआ, and due to dominance all the plants of the F1 grew tall, क्योंकि tall is dominant. And that is how, मतलब इससे ही conclusion आता है that the tall plant is basically a dominant plant. क्योंकि सारे के सारे F1 generation में tall ही आए ना, express हुए, इसके लिए हमने इसको conclude किया that the tall plants are going to be the dominant plants. ठीक है. तो ये conclusion आया. Then the selfing of the F1 generation was done. Selfing F1 generation का हुआ तो naturally क्या हुआ? F1 hybrid tall capital T small t is crossed with another plant having capital T small t. तो इसके दो अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे, बराबर है. जैसे यहाँ पे दो गैमेट्स बनते हैं तो this will be capital T, one gamete will have capital T, another gamete will have small t. Now अभी इनका क्या हो जाएगा? इनका होगा क्रॉसिंग, मतलब एक प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इट्स नेचुरली गोइंग टू बी 50% मेल एंड 50% लाइक यू नो, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन. बट उसमें से जो 50% था वो कैसा था? कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट और स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, बराबर है. सो सेम इट विल बी लाइक 50% मेल एंड 50% फीमेल, करेक्ट, क्योंकि दोनों प्लांट सेम ही है, F1 जनरेशन के ही प्लांट्स हैं. सो द पी फ्लावर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड. ठीक है. सो इनमें रैंडम फ्यूजन होगा, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कि रिजल्ट कैसे आएंगे, कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, कौन से गैमेट में कौन सा जीन रहेगा या फिर फैक्टर रहेगा, इज नॉट नोन. सो देयर इज ऑलवेज अ रैंडम फ्यूजन. और जब रैंडम फ्यूजन आता है तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी थोड़े से रैंडम ही होंगे. So each type of male gamete has equal chance to fuse with the female gamete. So that is why maximum possible results are these. So capital T combining with the small t and vice versa, ulta bhi ho sakta hai. So the F2 generation had these results. So it's like capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, and small t, small t. Correct? तो ये ऑपोजिट भी हो सकता है. सो द फोर कॉम्बिनेशंस विथ 3 जीनोटाइप्स, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूँ तो दिस कंबाइनिंग विद दिस रिजल्ट इज दिस टी कैन कंबाइन विद दिस स्मॉल टी, रिजल्ट इज दिस टी कैन कंबाइन विद दिस कैपिटल टी, रिजल्ट इज दिस, एंड दिस स्मॉल टी कंबाइंस विद दिस स्मॉल टी, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी दिस. और इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कौन से टाइप का क्रॉस हो गया ये अगर उल्टा करते तो? रेसिप्रोकल क्रॉस, बराबर है. तो मेंडल ने कोई भी रिस्क नहीं छोड़ा, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए करके उसने रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी किए टू मेक श्योर कि रिजल्ट सेम आए. समझ में आ रहा है सबको ये? सो आउट ऑफ द 4 कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, capital T was 1, capital T small t is 2, so they are known as the hybrids. So hybrid talls, this one is the pure tall, this one is the hybrid tall, and small t is one, which is going to be your dwarf. ठीक है. so pure dwarf में सिर्फ pure variety आएगा, dwarf में कभी भी hybrid आएगा ही नहीं. मतलब recessive रहेगा तो उसमें हमेशा pure varieties ही आएंगे. There won't be any hybrid variety when it comes to the recessive character. ठीक है. तो उसमें हमेशा हाइब्रिड्स ही रहेंगे. सो दस ओनली 1 out of 4 ऑफस्प्रिंग्स रिसीव्स रिसेसिव ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दैट इज 25%. 25% कैसे थे?
pure plant. So genotypic ratio is 1:2:1. उसमें से 25% is pure tall, 25% is dwarf and 50% is going to be hybrid tall. तो ये रिजल्ट आया, ठीक है. And the phenotypic ratio is going to be 3:1. 3 tall plants and 1 dwarf plant. So the phenotypic ratio is going to be 3:1. ठीक है. वैसे ये दोनों रेशियोज मिले मेंडल को. समझ में आ रहा है सबको ये? हेलो, गुड. कुछ कंफ्यूजन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा तो इमीडिएटली पूछ लो. खुशी सो गई क्या? नहीं सर. सर जब वो बिग टी और स्मॉल टी दोनों ऑफस्प्रिंग आएंगे तो वो आगे रिप्रोड्यूस कैसे होंगे? मतलब वो आगे कैसे होंगे ना? एक मिनट, अभी ना इसको मैं अच्छे से और ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ, देन यू विल गेट सम क्लियर आइडिया. उसके बाद तू क्वेश्चन पूछना. ओके ओके, जस्ट अ मिनट. मैं जरा ये कर लेता हूँ पहले, बैटरी लो हो गया है मैकबुक का, थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ. जस्ट अ मिनट. Okay, now just focus on what I'm going to explain to you. खुशी के लिए और बाकी सबके लिए भी ये जरूरी है समझना. अच्छा, अभी खुशी ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियरिटी लाना चाहता हूँ इसमें. दोनों, मेरा माइक चालू है. Okay, so suppose if I say that we have a P1 generation here, am I audible? यस. This is P1 generation. P1 generation में one plant is a tall plant, another plant is a dwarf. बराबर है. इसका मुझे लिखना पड़ेगा genes. So if I write the genes, it is going to be capital T crossed with small t. Correct? Genes basically will give rise to, of course, the next step will be formation of the gametes. Now gametes are formed by a cell division known as meiosis, जिसमें number of chromosomes they become half, thus the number of genes will also become half. तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा स्मॉल टी, इधर आएगा स्मॉल टी. अभी ये होने के बाद then we are going to have our next important, that is F1 generation. तो F1 generation में this gamete can combine with this gamete, the result is capital T small t, or this gamete can combine with this gamete, the result is capital T small t,
or this gamete can combine with this gamete, result is capital T small t, or this gamete can combine with this, result is capital T small t. यहाँ तक ठीक है खुशी? Yes. अच्छा, अभी मेंडल ने क्या किया? मेंडल वाज कंफ्यूज्ड हियर ना, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? ऑल द प्लांट्स आर टॉल, सो ही कंपेयर्ड देम विद द P1 जनरेशन. सो ही फाउंड दैट फिनोटिपिकली दे आर सेम, मतलब कैरेक्टर वाइज दोनों सेम है, लेकिन दोनों का जीन्स अलग है. पेरेंट में वन इज कैपिटल टी मतलब वो प्योर डोमिनेंट है, और यहाँ पे ये हाइब्रिड डोमिनेंट है नीचे वाला F1 जनरेशन. इनका सेल्फिंग किया तो क्या आएगा? P2 जनरेशन. P2 जनरेशन में we will get one plant which is tall crossed with another plant which is also tall. P2 जनरेशन के जीन्स अगर हम लोग लिखते हैं तो वो आएगा कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विद कैपिटल T स्मॉल t. इसका बनेगा गैमेट्स, अगेन मियोसिस होगा, तो दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे. वन विल हैव कैपिटल T, वन विल हैव स्मॉल t. दिस हैज कैपिटल T, दिस हैज स्मॉल t. फिर इसका क्या बनेगा? F2 जनरेशन. तो अगर यहीं पे अभी डायरेक्ट कर देता हूं मैं, पनिट स्क्वायर नहीं निकालूंगा, दिस विल कंबाइन विद दिस कैपिटल T. खुशी समझ में आ रहा है? Yes. और दिस गैमेट कैन कंबाइन विद दिस गैमेट, रिजल्ट इज कैपिटल T स्मॉल t. और दिस गैमेट कैन कंबाइन विद दिस गैमेट, कैपिटल T स्मॉल t. और दिस गैमेट कैन कंबाइन विद दिस गैमेट, अगेन स्मॉल t. सो दीज आर मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स. तो इसमें फिर जीनोटाइप कितने आए? तो जीनोटाइप आए 3, कैपिटल T स्मॉल t. ये आया 1, ये आया 2, ये आया 1. 1:2:1. और फिनोटाइप भी 2 आए. कौन से फिनोटाइप 2 आए? वन इज टॉल एंड द अदर वन इज ड्वार्फ. उसमें से टॉल कितने थे? 3. ड्वार्फ कितने हैं? 1. सो द रेशियो इज 3:1. करेक्ट आदित्य. नाउ यू आस्क मी व्हाट इज योर क्वेश्चन. सर वो P2 वाला ही नहीं समझा था मुझे. अभी समझा? हाँ सर. अभी समझा ना? हाँ. गुड. तो ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके समझ में आएगा. इमेजिनेशन प्रैक्टिस ये कर करके फिर ध्यान में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ओके, ये तो सिर्फ अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये शुरुआत है. फिर डाई हाइब्रिड है, फिर ट्राई हाइब्रिड है, फिर क्रोमोसोमल बेसिस है. तो थोड़ा टॉपिक्स डिफिकल्ट होते जाएंगे, बट यू शुड बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड देम. ओके, खुशी अभी नहीं ना प्रॉब्लम कुछ? नो. चलो, so the monohybrid ratio is basically the phenotypic ratio of different types of offspring, that is dominant and recessive, obtained in F2 of a monohybrid cross. अच्छा, अभी रेशो हम लोग F1 जनरेशन का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज रिजल्ट्स आर सेम, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 1:1. क्योंकि कंपेयर रेशो निकालने के लिए कम से कम 2 कैरेक्टर्स तो चाहिए ना, लेकिन F1 जनरेशन में सब कुछ सेम ही है. So you cannot have a ratio in F1 generation. तो F2 जनरेशन में रेशो आएगा. तो यहाँ पे ये P1 जनरेशन है, P1 जनरेशन से बना F1, so only one of the trait got expressed. So the ratio is little difficult here. All are tall. लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ? F1 trait expressed largely and contrasting trait in a smaller number. जैसे 3:1. क्योंकि F1 tall है, that is getting expressed, and dwarf जो P1 जनरेशन में था, that is also getting expressed. सर मतलब जो F1 का प्रोडक्ट्स था like tall plants, तो वो as a P2 जनरेशन लिया है. Yes, correct संजीवनी. When we say F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाया, मतलब F1 जनरेशन is now P2 जनरेशन. समझ में आ रहा है सबको? Hello, are we all there? Yes. चल ठीक है. सो ये आ गया आपका टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो. सो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड रेशियो, व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो. ठीक है, दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मैंने अभी आपको दिखाया. P1 जनरेशन, पेरेंटल टॉल, पेरेंटल ड्वार्फ, बोथ आर गोइंग टू बी प्योर, जिनका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल T स्मॉल t. So this is getting forming the gametes, कैपिटल T. यहाँ से गैमेट्स बनेंगे स्मॉल t. सबका क्रॉसिंग होगा तो आएगा F1 जनरेशन. ये मैंने अभी आपको दिखाया.
जस्ट बराबर है सेम. ऑल द प्लांट्स आर टॉल. F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स कैसे है टॉल. राइट. इसके बाद आया F1 जनरेशन का सेल्फिंग. ठीक है. सो फिनोटाइप इज टॉल, जीनोटाइप इज कैपिटल T स्मॉल t. सो इट्स गोइंग टू बी हाइब्रिड. करेक्ट. सो इसका सेल्फिंग करेंगे तो F1 जनरेशन के जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है. सो अगेन दे विल स्प्लिट, सेग्रीगेशन होगा. सो अगेन वन गैमेट विल हैव कैपिटल T, अनदर गैमेट विल हैव स्मॉल t. अभी इनका होगा सेल्फिंग ऑफ F1 मोनोहाइब्रिड. ये एक प्लांट है, ऐसा ही दूसरा प्लांट रहेगा तो दूसरे प्लांट में भी सेम कैपिटल T एंड स्मॉल t. दैट दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल गैमेट्स व्हिच कैन बी फॉर्म. इसके अलावा और कोई गैमेट्स बनेगा ही नहीं. जब इनका सेल्फिंग होता है तो दैट विल गिव राइज टू व्हाट द परसेंटेज लाइक दिस. एज आई सेड 25% capital T, 50% capital T small t and 25% small t small t. This is known as what? Punnett square. है ना. इसको हम लोग बोलते हैं Punnett square. Let one plant be a male plant, another plant be a female plant. यहाँ पे लिखा ही हुआ है. Okay. So इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इस तरीके से. So this plant will be a male plant and this plant will be a female plant like this. ठीक है. ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में निकाला था, याद है तुम लोगों को? सीबीएसई में. हाँ, जो लोग सीबीएसई में था उनके लिए. एसएससी में जो थे उनका 9th में शायद ये हुआ था. राइट. सो दिस इज लाइक ऑल 3 आर टॉल and this one is dwarf. So the ratio is 3:1. ठीक. सो ये टिपिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने दिया था, इसके लिए मैंने इसको रन थ्रू किया है. इज इट ओके? मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको समझा? 100%. किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, परेशानी, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है. चलो तो हम लोग पढ़ते हैं अभी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. अभी ये आपको लिखना पड़ेगा. ओके. तो 2 लॉज आए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द अदर वन इज लॉ ऑफ segregation. So what is law of dominance? So it is the first law of inheritance. What it says, in a cross between two organisms pure for any pair of contrasting trait, the character appearing in the F1 generation is called as dominant. ठीक है. So that any one of them will one character will be dominant and the other one will remain recessive. जैसे पेरेंटल टॉल है कैपिटल T, पेरेंटल ड्वार्फ है स्मॉल t. इनका F1 जनरेशन आता है तो उसमें सारे प्लांट्स कैसे हैं टॉल. सो दे शो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, ऑल टॉल प्लांट्स. सो द डोमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एंड द रिसेसिव इज सप्रेस्ड. So we call this as the first law of inheritance, called as law of dominance. ठीक है. Write down the heading and just write down this definition. क्या लिखोगे? पहले ये सेंटेंस लिखो, फिर ये दूसरा सेंटेंस लिखो. ये होने के बाद मैं बोलता हूं और क्या लिखना है. इधर फुल स्टॉप देना है. हो गया? डन. चल. And then write down this one. This is your third sentence. Dominant is expressed and the recessive is suppressed. हो गया? चल. Now each character is controlled by a pair of factors, contrasting factors जिसको हम लोग बोल सकते हैं. जैसे same height होता है. Yeah. So capital T dwarf is small t, where when there is a pair of dissimilar factors.
जब कभी भी, अभी ये कैसा है ना, ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर डिसिमिलर रहता है लाइक दिस, इन दिस केस only the dominant factor will express itself. That is the rule. Getting this? So out of this, only dominant character will express itself. Thus one factor is dominant and the other one is recessive. तो कोई एक dominant होगा और दूसरा recessive रहेगा. Is what Mendel said. हाँ. लेकिन इसके ऊपर ना, ये लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रेट्स शोइंग डोमिनेंस आर, जैसे फॉर एग्जांपल गिनी पिग्स. गिनी पिग्स में अगर देखोगे तो उनका जो डोमिनेंट ट्रेट रहता है वो ब्लैक कोट है, रिसेसिव ट्रेट इनका व्हाइट कोट है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इनमें अगर क्रॉस होता है, ह्यूमंस में कर्ली हेयर इज डोमिनेंट, रिसेसिव ट्रेट इज स्ट्रेट हेयर्स. Correct? Straight hairs is a recessive, curly hairs is dominant. Then brown eye, dominant trait. Blue eyes or green eyes is a recessive trait. Correct? तो humans में दिखता है, ज्वार जो खाते हैं हम लोग, उसमें भी pearly seeds are, pearly grains are dominant and chalky grains are recessive. ठीक है. So there are several cases where dominant. अच्छा, अभी ना ये सारे कैरेक्टर्स हो गए. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि मेंडल वाज confirmed with this particular law because he was studying only garden pea plant, Pisum sativum, और उसमें ऐसे ही रिजल्ट्स मिले. ठीक है. फिर उसने बाकी किसी प्लांट के साथ, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ इसको कभी इस तरीके से कंपेयर नहीं किया, because he did not get enough time. But later on, the scientists, when they were studying, or they found out that there are many cases where dominant is not complete or it is absent also. Correct? कभी कभी complete नहीं होता है. जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था, red colored flower is crossed with a white colored flower and the new flower is basically pink. Okay? तो ये pink कैसे हो गया? तो ये पिंक हो गया बिकॉज ऑफ अ लॉ हियर, जो नया लॉ लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं नियो मेंडलिज्म. इसको हमने नाम दिया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या? नीदर रेड इज एक्सप्रेसिंग कंप्लीटली nor white is expressing completely. It's a intermediate product which is getting formed here. तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही बना. इसके लिए इसको बेसिकली, बिकॉज ऑफ ऑल सच एग्जांपल्स, द साइंटिस्ट हैड अ डाउट दैट व्हाट मेंडल डिड, वाज इट रियली करेक्ट. बट व्हाट मेंडल डिड वाज एक्चुअली करेक्ट. दिस वाज समथिंग व्हिच दे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मॉर्फोलॉजी में, हमने पढ़ा था, देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रूट एंड देयर मॉडिफिकेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशन. तो वैसा ये मॉडिफिकेशन हुआ उन्हीं के लॉज में. यस, लाइक एन एक्सेप्शन. लेकिन ये मॉडिफिकेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, एंड दैट इज हाउ हिज लॉ वाज केप्ट इंटैक्ट, प्लस दीज डिफरेंट लॉज वेर डेवलप्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव, से फॉर एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. some people will have A blood group, some people will have B blood group, some people will have AB blood group. अभी अगर AB ब्लड ग्रुप होता है मतलब बोथ आर एक्सप्रेसिंग इक्वली, राइट? समझ में आ रहा है? सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोडोमिनेंस. यस, करेक्ट यू आर. दिया, सानिका, बराबर सबने आंसर दिया. यस. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोडोमिनेंस. मतलब बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग इक्वली. None of them is recessive, neither it is causing a blending inheritance like this. ठीक है. ये सब अपने को पढ़ना है, but not now. We will study it some other time. यानी और एक basic concept है, वो पढ़ने के बाद then we will study the exceptions. Okay. So what is the significance of dominance? इसका importance क्या है? The harmful recessive traits are masked, that is not expressed in the presence of its normal dominant allele. ठीक है. अगर एलिल, एक पर्टिकुलर डोमिनेंट एलिल अगर नॉर्मल रहेगा और रिसेसिव अगर हार्मफुल रहेगा, सो दैट रिसेसिव विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वो कभी एक्सप्रेस नहीं होगा. समझ में आ रहा है? सो जैसे ये वाला है प्योर पर्पल एंड व्हाइट कलर्ड फ्लावर P1 जनरेशन में. सो F1 जनरेशन में सारे कैसे बन गए? पर्पल. ठीक है. तो ये आता है. नाउ
Conditions like idiocy, diabetes, hemophilia, they are all known as the recessive characters. Correct? Hemophilia पता है ना आपको? Hemophilia is bleeding disorder. Diabetes mellitus is lack of insulin or absence of insulin. Idiocy, मतलब it is related to thyroid hormones or some other hormones or genetic abnormalities. Okay, so basically these are all called as the recessive type of diseases. So hence law of dominance is significant but not universally applicable. क्यों universally applicable नहीं होता है? That I have already told you, because there are some other concepts like codominance and there is incomplete dominance. Okay, so that is why this particular law is going to be really very important. So this is your first law, that is law of dominance. फिर सेकंड लॉ आता है, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अभी ये क्या होता है, अभी इसको भी आपको लिखना पड़ेगा. आई होप एवरीवन हैज रिटन व्हाट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. This is second law of inheritance. What it says, in a hybrid member of allelic pair, remains together, so they will not mix. Instead, they will get segregated or separated at the time of formation of the gametes. ठीक है? The allelic pairs will always remain together but will not mix, so that at the time of formation of the gametes they will segregate or separate, so that any one of them will get expressed in a given gamete. So the gametes will receive only one of the two factors and therefore they are basically the pure ones. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही मिल रहा है ना, इसके लिए वो प्योर ही होगा, ऐसा बोला गया है. राइट? सो दिस इज देयरफॉर नोन एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. आर यू गेटिंग दिस? प्योर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये हाइब्रिड है, लेकिन गैमेट में तो ये प्योर है और ये भी प्योर है ना, इंडिविजुअली. इसके लिए उसको बोला गया है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड लॉ. अभी इसको लिख लो, पहला ये सेंटेंस, ये होने के बाद विल रिमेन टुगेदर बट एंड डू नॉट मिक्स, so that at the time of formation of the gametes, they both will segregate and the gametes receive only one of the two factors which are pure. Therefore called as law of purity of gametes. ऐसा लिखना है आपको. खुशी डिपेंड्स ना कि उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगे. वो हमने F2 जनरेशन देखा ना खुशी, F2 जनरेशन का रिजल्ट है, उसमें 2 ऑफस्प्रिंग्स उनके होमोजाइगस है और 2 हेटेरोजाइगस है. खुशी, हाँ, हो गया. हो गया. ओके, ठीक है. So both the law of dominance and segregation can be explained with the help of a monohybrid cross. और डायहाइब्रिड क्रॉस से आया तीसरा लॉ, डायहाइब्रिड क्रॉस ऑनवर्ड्स, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वो तीसरा लॉ तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो दोनों लॉज इसमें से ही आ गए. ठीक है, सो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड and the gametes are always going to be haploid, and as the gametes are haploid, so we are going to share equal number of genes from both the parents. So therefore law of segregation is universally applicable. क्योंकि segregation तो होना ही है ना, क्योंकि gametes जो बनते हैं वो haploid होते हैं, तो मतलब ये दोनों का separation तो हो ही रहा है. So that is why this particular law is universally accepted. When a pair of contrasting factor or allelomorphs
organs or genes are brought together in a hybrid heterozygote, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. बराबर है सानिका, good, what you have written is right. अभी जो इतना सारा तूने टाइप किया वो नोटबुक पे लिख. So that is your law of segregation. ठीक है, and law of segregation therefore is universally acceptable. Right? तो ये हो गया हमारा first part of the topic Mendelian inheritance का, that is the different laws. Now we have to start with the dihybrid cross, dihybrid ratio, its explanation, etc, etc, etc. ठीक है, तो ये सब हम लोगों को चालू करना है. But should we start now or next time चालू करते हैं Tuesday को? Next time करें, चलो good, next time करते हैं, अभी रुकते हैं. Fine, चलो, thank you very much, bye bye, see you और सब लोग आओ. Thank you. Thank you, sir. Yes, Thank bye. you, sir. Bye, Bye sir. bye, take care, God bless you all, bye.